सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको पहले वीडियो में आप देखा रहेगा कि हमने किस तरह डाउनलोड किया है। सो वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो दैट हाउ वी डाउनलोडेड द C programming app in Android. I have shown the whole steps and everything. You can go and check that out. I don't know whether I will be linking the link below or not. Anyways, you can see in my playlist if I am creating it. Okay. सो दिस इज़ द फर्स्ट इंटरफेस विच यू आर गोइंग टू सी। मैं फ़िलहाल ये लैंडस्केप मोड में हूँ। ये मेरा एक एंड्रॉयड फ़ोन है, देख लीजिए, एंड्रॉयड फ़ोन है। और देखिए ये ऐप में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में जो है ये वेलकम टू सी टर्बो C++ लिखा है। तो C++ जो कंप्यूटर्स में होने वाला है, तो वही प्रोग्रामिंग हम लोग एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, रन योर फर्स्ट प्रोग्राम एंड द क्रेडिट गोज फॉर मेकिंग दिस ऐप इज़ बाय योगेंद्र सिंह नाम का कोई व्यक्ति है। सो आई थैंक योगेंद्र सिंह फॉर दिस। थैंक यू ब्रदर for this, because by him only we are. So here are some of the code that is given already. I don't know what is this. I don't know whether he has said it. Anyways, let's start. सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको दिक्कत हो सकती है, you may face some trouble while using it. So what you have to do, you have to understand how to use it. Okay, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको ये ग्रीन बटन में प्रेस करना है, ठीक है। ये ग्रीन बटन ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ग्रीन वाले में आपको क्लिक करना है। अब क्लिक कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू क्लिक। सो फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट इफ आई टच हियर nothing happens, something different happens. Okay, so what you have to do, you have to drag it. You can see I am holding my finger and the cursor is moving. This is just like computers, right? So you have to drag it and you have to put that in that green box and you have to test anywhere, like anywhere. Okay, now you can see the whole screen is clear screen. Okay, so you can see that you just have to drag here. Okay, I am doing it step by step. If you are a new person, if you are a beginner, you can surely do that. I am sure that you will definitely learn at least something from Android, and you will have a great help if you don't have a desktop. Anyway, just click on this green button and this whole screen will be clear. And now what we have to do, we have to click, since we have to code, right? We have to code, we have to program, we have to make programs. So we have to make a new project, right? So we have to click here. For the kind information, I want to clear that you can do almost everything like just in desktop in this Android, almost everything, just definitely, but some things can differ, so you have to be somewhat adjustable. Some things can be differ, but in look wise and everything you can see that everything is same. Okay, तो देख लीजिए आपको कौन सी आसान लगती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके ना फाइल के ऊपर में ऐसे रहेंगे। फर्स्ट वी हैव टू ड्रैग एंड वी हैव टू पुट द कर्सर above file, and now we have to click anywhere on the screen. Okay, you can click on file or anywhere, just like in computer you have to click anywhere. I am clicking in the body. Oh, I double click. Okay, single click, because since it is a means in फ़ोन में भी होता है ना, फ़ोन में सिंगल क्लिक से हो जाता है, सिंगल क्लिक, राइट। एंड कंप्यूटर में भी सिंगल क्लिक, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा कंप्यूटर वाले इफेक्ट है। तो अभी यहाँ फाइल में आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा किस तरह यहाँ पे ये फाइल, इसके जो ड्रॉप बॉक्स है हमें खुले हैं। अभी हम लोग करेंगे न्यू, ठीक है। न्यू में ओपन कर दिया तो न्यू ओपन हो गया, ठीक है। तो न्यू में ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम लोग प्रोग्राम करेंगे। सो व्हाट इज़ आवर टुडेज टॉपिक हम लिख लेते हैं। आज हम लोग क्या प्रोग्राम करने वाले हैं। प्रोग्राम जो C++ का है, ठीक है ना, हम करेंगे
program for adding integers. Okay, so we will add integers. Okay, integers short form क्या है, z, right, whatever. Okay, so सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे. तो सबसे पहले आपको अभी हम लाइन बाय लाइन जाएंगे और आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से आना है. तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ओह आई कैन नॉट शो यू मे बी हियर आपको देखिए कीबोर्ड बोल के एक ऑप्शन रहेगा. तो आपको याद रखना है कि आपको कीबोर्ड जस्ट टच करने से नहीं मिलेगा, आपको कहीं में कर्सर रखना पड़ेगा और फिर वहाँ में जाके कीबोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो यू कैन सी दैट माई कर्सर इज हियर एंड आई एम गोइंग टू ओपन माई कीबोर्ड. ओके, कीबोर्ड ऑन किए और कीबोर्ड आ गया है हमारे सामने. अब हमें कोड करना स्टार्ट करना है. सबसे पहले हम लोग हैश डालेंगे, हैश include, you can note it, you can take screenshot whatever. Okay, फिर STDIO, इसमें STDIO का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. ओके, .h दैट इज़ द हेडर फाइल. ओके, इंक्लूड करिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, ये कहना चाहता है, ये कोड के मतलब है. ठीक है, तो इसी दौरान आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है, STD यानी कि स्टैंडर्ड. ओके, I मीन्स आउट इनपुट एंड O मीन्स आउटपुट एंड H मीन्स हेडर फाइल. ओके, ये सब उतना जानने का ज़रूरत बोल सकते हैं, लेकिन एनीवेज यू विल लर्न इट. ओके, नेक्स्ट लाइन में हम जाएंगे और लिखेंगे void main ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट. आई डोंट नो, ज़्यादा तो अच्छे से नहीं पता है, लेकिन void main मीन्स void तो आप समझ नहीं करते, कुछ ब्लैंक के लिए, कुछ डेटा के लिए. तो डेटा कुछ इनपुट करने वाले हैं, उसके लिए करने वाले हैं. ठीक है, ये सिंटैक्स है, आप सिंटैक्स को कृपया नोट करते रहिए. देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, नो एंटर, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन एंटर, देन राइट. सिंस टुडेज, आज का प्रोग्राम क्या था, सम ऑफ इंटीजर्स ना. सो वी विल डू सम ऑफ इंटीजर्स. So we will write int, int. Okay, it is a keyword for integers. Okay, int sum, integer का sum करिए, do the sum of integers, then semicolon is for breaks. Okay, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग सब कुछ समझ कर रटे नहीं, क्योंकि रटने से नहीं हो सकता है, प्रोग्रामिंग रट नहीं सकते हैं. ओके, तो you have to understand each and every keyword. If something you are finding that I am wrong in, you can comment down or you can search on the internet and give the correct results too, because I am not saying I am an expert, I am just trying to direct the beginners especially, so that they can land in the field of programming. So okay, तो क्योंकि हम लोग यहाँ में इंट यूज़ करते हैं, हम इंटीजर से भी यूज़ कर सकते हैं. इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर कहते हैं नेगेटिव्स, ज़ीरो और पॉजिटिव्स, राइट, इसे इंटीजर करते हैं. तो ये है, अगर आप, तो इसके अलावा आप कोई भी नंबर यूज़ करने से वो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा. अगर आपको डेसिमल यानी कि 6.1, 7.22 तो वो करना है, तो आपको फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, फ्लोट भी एक कीवर्ड है जो डेसिमल्स के लिए है. ठीक है, फिलहाल हम लोग इंटीजर्स से लिख रहे हैं सिंपल के लिए. फिर आपको लिखना है क्लियर SCR. ठीक है,
क्लियर स्क्रीन, यानी कि जितने भी बेकार चीज़ कुछ भी होंगे स्क्रीन में तो वो सब क्लियर हो जाए और ये आ जाए, ऐसा कुछ हम कमांड दे रहे हैं। साथ में ब्रेक डालेंगे, ब्रेक डालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बताइए, ठीक है। ब्रेक डाल दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रिंट करना है, राइट। सो हमारे स्क्रीन में क्या दिखना है, जो भी दिखना है उसको बोलेंगे प्रिंट, ठीक है। प्रिंट एफ में फॉर फंक्शन, आई गेस। तो प्रिंट फंक्शन, ये फंक्शन को आप प्रिंट करे बोल के बोल रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन, ओके। प्लीज़ नोटेड दैट हियर देयर इज़ नो इक्वल टू। सो अगर आप पाइथन कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इक्वल टू सब कुछ आ जाता है शायद, तो वो सब नहीं है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, देन आपको नोटिस करना है कि आपको मीन्स ये वाली जो है ना, ये वाली, ये नहीं यूज़ करना है आपको। इसमें जाके आपको ये वाली स्लैश का यूज़ करना है, ठीक है। फिर देन एन, ओके। व्हाट इज़ दिस, व्हाट डज दिस मीन, कैन एनीबडी टेल इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल टेल यू, ओके। ये जो है, सॉरी, स्लैश एन, ये आपके आके ना न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो न्यू लाइन के लिए है ये स्लैश स्पेस, फिर आपको जो भी डेटा आपको लिखना है न्यू लाइन में, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ना, लिखना है जैसे प्लीज़ एंटर 2 इंटीजर्स, ओके। तो इंटीजर्स हम बोल दें, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे ताकि हमें ये एश्योरेंस हो जाए कि ये डेटा को प्रिंट करना है, और प्लस ब्रेक फॉर सेमीकोलन, ओके। एंटर, ओके। अब हम डालेंगे सम इक्वल टू 2 + 2 सेमीकोलन, printf bracket open, and sum equal to percentage symbol d inverted comma sum, bracket close, then semicolon, get okay. So let's see whether we are right or wrong, तो चल जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपाइल में जाना है, ठीक है। कंपाइल में क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कंपाइल, प्रेस एनी की, तो यहाँ में क्या लिखा है आप देख सकते हैं। यहाँ में एरर आपको बता रहा है, क्या क्या बता रहा है, एरर फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप, ओके। तो काम करते हैं, उसे एक बार डिलीट कर देते हैं।
ओके, वापस कंपाइल करेंगे, कंपाइल इधर है। ओके, कंपाइल, फिर यहाँ क्या कर रहा है, अनडिफाइंड सिंबल, अनडिफाइंड सिंबल कह रहा है, गेट सी एच यानी कि गेट कैरेक्टर। So what we will do, we will just go here, we will just delete it and open brackets, close bracket and ठीक है। Now just we will compile again, compile, चलो गेट सी एच को भी हटा के देखते हैं, ठीक है। ओ वो हमें कॉलन आ गया, कॉलन, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी प्रोग्राम। गलती होंगे तो आपको चेक करना है, चेंजेस करना है, दैट्स हाउ here in C++ it works। okay, now we will compile again, okay, so now we are completely removing it। okay, I think there is some issue, I think this may not be coming। okay, इसका हटा देखते हैं एक बार, compile, okay, now run, okay, now it is telling that statement 7 1 2 3 4 5 6 7 compound statement missing। so what we can do, we have to make changes here। okay, so let's try to add guess ch, open bracket, close bracket, then break, then just write since here we have opened the curly bracket, so we will just try with close bracket। okay, now again compile, now run। okay, again there is some issue, don't worry, means this is how it will work, I will rectify it। so guys, here we have written this right, let's try to remove that, so we will just give some backspace। okay, now just again compile and do compile, enter any key and great, see here no errors, ठीक है ना। तो दिस मीन्स दैट वाइल डूइंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर में करते हैं, कोई सिस्टम को एक कीवर्ड एक वो देने से थोड़ा समझ लेता है, थोड़ा ज़्यादा फंक्शन कर लेता है वो अकॉर्डिंग टू वर्जन्स एंड ऑल। सिंस दिस इज एंड्रॉयड, सो बेसिकली देयर विल बी मैनी इश्यूज़, राइट। सो वी हैव टू एडजस्ट अबाउट इट, एंड आई ऑलरेडी सेड यू, अगर आप एंड्रॉयड में कर रहे हैं तो आपको कुछ इधर उधर कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। सेम फॉर कंप्यूटर्स, आप यहाँ पे जो सीखेंगे सेम वहाँ पर चल सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता, तो आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। आखिरकार हम लोग ने निकाल लिया। अब हम देखेंगे, हम रन करके देखते हैं क्या हो रहा है।
ओके, रन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। Let's see what's the problem. ओके गाइस, कुछ रन में कुछ इशू आ रहा है। एक मिनट। सो गाइस, वी हैव रेक्टिफाइड सम ऑफ द इश्यूज। अब आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले ये तो लिखना है, ये भी लिखना है, फिर ये, ठीक है, ये सिंटैक्स जो है। फिर आपको समझना है कि हम लोग इंटीजर्स लेने वाले हैं, जो इंटीजर्स है उसका हम लोग सम करने वाले हैं। तो उसका हम लोग क्या चाहते हैं, उसका आउटपुट जो प्रिंट हो, आउटपुट निकले बाहर, जो उसमें लिखा जाए कि प्लीज़ एंटर 2 इंटीजर्स, ठीक है। उसमें जाके फिर आपको क्या करना है, स्कैन एफ का कमांड यूज़ करना है, जो फंक्शन है स्कैन एफ का। तो उसमें वो चेक करेगा कि क्या 2 इंटीजर वहाँ पर है या नहीं। ये परसेंटेज डी सिंटैक्स का एक पार्ट है जिसको आपको लिखना पड़ेगा जब भी आपके पास कोई इंटीजर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह आपको फ्लोट अगर रहेगा तो आपको परसेंटेज एफ सब भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, सम प्रिंट करना है। प्रिंट में क्या करना है, सम प्रिंट होएगा और उसमें एक सम का वैल्यू होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंपाइल में क्लिक करेंगे, उसके बाद कंपाइल दबाएंगे, उसके बाद कोई भी यानी कि, ठीक है। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कंपाइलेशन में कोई एरर अभी तक तो नहीं आया है। जस्ट सी, लेट्स सी दिस इज आवर होप, वी विल रन इट हियर। ओके, रन हियर, रन। Okay, very good. So you can see in that this have run and our program is correct now, ठीक है। इसको इग्नोर करिए, ये सबको इग्नोर करिए, ये पहले किया वाला, ट्राई किया वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे, इसमें कुछ भी वैल्यू डालिए, जैसे कीबोर्ड ऑन करिए और लिखिए 5, ठीक है, एंटर। 5 लिखने के बाद आप और एक नंबर, आप स्पेस भी दे सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, बट नो नीड ऑफ स्पेस, 5 + 6 जो 11 होना चाहिए, एंटर, ठीक है। तो इस तरह आपका ये होगा, ठीक है। Okay, thank you. Please try it yourself. I will make another videos. Please share, like or dislike it. Okay, if you want you can subscribe or anything. I will be posting all the tech related things or programming and anything that I know I want to share it with you. You can do here. We have made some changes. You can just rectify by looking in the reverse of the video. Thank you so much for watching.